I believe there were 60 people who had registered to join via Ma'am, we Zoom are call. live. Okay. So, a very good evening to everyone, and welcome to a very special session by Global Education Training Institute, or Getty. This disruptive education movement has been conceived with the grand vision of gathering global education leaders under one platform to brainstorm on and to charter the next quantum leap in education. Today, at this very special Facebook and live YouTube live session, with us an internationally famed nutritionist, a record holder for memory, and one of the world's most translated authors on nutrition. He's the author of 5 books. And this is none other than your very favorite Miss Dr. Biswarup Roy Chaudhary. This global stalwart has gathered millions of followers. He holds a PhD in diabetes. The subject of deliberation tonight will probably focus a lot more on that today. And is on the advisory of the RICHS Vietnam. Um, he's a content creator for Lincoln University, Malaysia, and the head of R&D, Sant Hirdaram Medical College in Bhopal, India. This well-known proponent of reversing lifestyle diseases, Dr. Biswarup Roy Chaudhary, has the vision of creating a healthier world through diet. Today, under the Getty Live Forum, Dr. Biswarup is going to address on Food as Medicine Part 2. We had held a similar session about 6 days ago. To be precise, on the 6th of June, we held the previous part 1. And this is a follow-on session to look at how his diet has perhaps impacted people within a very short span of 3 to 4 days. And those, of course, who have followed it strictly, and versus those who have tried it to some extent. So I hereby invite Dr. Biswarup to address our listeners who are very intently waiting to hear from you. So over to you, Biswarup ji. थैंक यू डॉक्टर सुंदर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। और धन्यवाद एक बार फिर मौका देने का। एंड इसमें बैकग्राउंड में देता हूँ। लास्ट टाइम हमारा 6 जून को 6 बजे बात हुई थी, एंड दैट वाज अबाउट द DIP डाइट। DIP डाइट इज अ 3-step डाइट जिसमें व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट सेवरल इयर्स, इट हैज बीन अबाउट नाउ 12 इयर्स, कि जो भी लोग DIP डाइट पे जाते हैं उनका विद इन 3 days उनका ब्लड शुगर इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग. As a result, they have to drop their medicine, and insulin they have to reduce by 50%, mostly on average. और जो constipation के patient हैं, and within 3 days the constipation vanishes. और blood pressure के जो patient है, it takes about 7 days to reduce the blood pressure to normal, means they can stop the medication. So these are the small things which is seen most of the time for most of the patients. Of course, there can be some kind of कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे रिजल्ट ऐसे नहीं भी आते हैं, लेकिन मोस्टली रिजल्ट ये यूनिफॉर्मली मैंने देखा है, भारत में देखा है, अलग अलग देशों में देखा है। तो उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी 6 बजे, तो तब मैंने ये प्रपोज किया था, विच वी एक्सेप्टेड ऑल्सो, कि वी कैन हैव ए फॉलोअप सेशन जहाँ पे जो लोग इसको करके देखना चाहते हैं 3 दिन के लिए, और करके देखने के बाद फिर हम एक और सेशन करें, दैट इज द सेशन विच वी आर इन राइट नाउ। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इन सब ने 6 तारीख का वो इवेंट देखा था, नंबर 1। नंबर 2, उसको देख के अपने लाइफ में DIP डाइट को इम्प्लीमेंट किया, या अपने या अपने फैमिली मेंबर्स के इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग सब मिले हैं। तो अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ फीडबैक्स होंगे बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड, तो वो फीडबैक से हम शुरू कर सकते हैं। एंड फीडबैक आप में से जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, 1 by 1 उनका माइक ऑन करके, and in a very brief, if they have a feedback. So Dr. Sandeep Sharma, I can see a हाथ raise है,
तो आप बहुत बताएं तो आगे वहां से लेके हम शुरू कर सकते हैं। Professor, myself Dr. Sandeep Sharma. Actually, I want to ask one question about Corona. You want to ask question about Corona? Okay, carry on, please. I want to ask that suppose America or any company make vaccine about coronavirus, suppose, and the RNA virus change its character, change its DNA, then that vaccine will not work. That for sure. Yeah, of course, that is sure. There is no doubt about it. That is sure. And one more question: suppose one patient is infected from one strain of the virus. He survive and his immunity work. If the virus change its character, change its DNA or RNA, then it is there possibility that he will die from another strain. Can it be more virulent? No, he will get sick again. वो दोबारा बीमार पड़ेगा. Just like a common cold. Common cold एक बार होने के बाद हम इम्यून नहीं होते, इसलिए कॉमन कोल्ड एक बच्चे को साल में 3 बार भी होता है, हमें हर साल होता है, तो वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा. तो वो मरेगा नहीं, मरना तो एक अलग बात है, वो बीमार पड़ जाएगा. अच्छा, बीमार फिर भी पड़ सकता है. हाँ, इम्यून नहीं होगा. इम्यून नहीं होगा, मतलब कुल मिला के इसका वैक्सीन बनना इम्पॉसिबल है. हाँ, इम्पॉसिबल है, वैक्सीन बनना इम्पॉसिबल है. वो उतना इम्पॉसिबल है जितना इम्पॉसिबल किसी इंसान का हमेशा जिंदा रहना. Exactly, means it is totally a fraud. Now I accept it. I am also a surgeon. Now actually I want to clear from you. Thank you sir. Thank you, Dr. Siddiq. Yeah, Mr. Praveen. नमस्ते डॉक्टर, मैं शुरू करना चाहती हूँ. नमस्ते. तो आपका DIP डाइट मैंने सुना था, मैंने अपने फैमिली में सबको करवाया है. आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है प्रवीण. हाँ जी, मैंने अपने फैमिली में DIP डाइट करवाया है. राइट. हाँ जी, तो मेरे दादाजी को वो था बीपी की गोली लेते थे वो पिछले 20 सालों से. हाँ. तो मैंने उन्हें कहा कि छोड़ दो ये, और फिर वो अब 4 दिन से किया है उन्होंने, उनकी बीपी भी नॉर्मल आया. बहुत अच्छी बात है. 4 दिन में बीपी नॉर्मल, जो 20 साल से बीपी की गोली लेते थे बिना गोली के. दैट इज वंडरफुल. ये तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. हाँ जी, और एक और क्वेश्चन है हमारा कि मेरे मम्मी पापा को मैंने कराया, मैंने खुद भी किया है DIP डाइट, और फिर पापा को ना रेस्टलेस लेग से हुआ है, और एक तो उनका हाथ सुन हो जाता है सोते रात को, और दर्द होने लगता है उसमें. सुन, Visruji, can you repeat what he has said because we cannot hear him very well? मैं रिपीट करता हूँ. मिस्टर प्रवीण का जो था कि DIP डाइट इन्होंने अपने दादाजी को कराया. दादाजी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है फॉर लास्ट 20 years. ही हैड बीन टेकिंग मेडिसिन, और अभी इन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया पिछले 4 दिन में, और ये DIP डाइट किया, और अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया बिना मेडिसिन के. दैट इज द ग्रेट थिंग. 20 years blood pressure with medicine, and now for 4 days without medicine with DIP diet the blood pressure is normal. That is one thing he is given input. And इसका स्पीकर पे रहने दो ना, हटा दो. और इसके बाद इनका एक सवाल है अपने पेरेंट्स के लिए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी प्रवीण, कि आपके पेरेंट्स का, आपकी मम्मी का शायद आप बोल रहे हैं कि पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं. इज दैट द क्वेश्चन? मेरे पापा का पैर और हाथ सुन्न हो जाते हैं. इसे जोर से कर दो ना, हटा दो इसको, कर दो ना. इसमें क्या बात हो गई है? मुझे ऐसे अच्छा लगता है. अच्छा मैं बात कर सकती हूँ. अगर कोई DIP डाइट करेगा फॉर लॉन्गर 3 महीना, आपको वीडियो दिखानी है ऐसे आवाज नहीं जाएगी क्या? और दूसरा ऐसे जॉब मूड बनाया करो हर छोड़ी. अच्छा छोड़ो करना पड़ेगा. जो बच्चे का आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है. सो प्रवीण, ये तो गया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन 3 महीने में. अभी क्या करना है, जिनका भी पैर सुन्न होता है, हाथ सुन्न होता है, रात को सोने से पहले एलोवेरा लेना है. एलोवेरा पत्ते से लेना है, पौधे से लेना है, ना कि बॉटल से, और लगा लेना. मुझे ये पूछना है, अगर मान लो कुछ पूछना हो तो मैं पूछना चाहती हूँ ना, कैसे बोलूंगी? समझ नहीं आ रहा. फोटो दिख रही है उनकी, वो दिख रही है, मेरी कैसे हो सकती है? ऐसा करेंगे तो विदिन 1 वीक पढ़ना शुरू हो जाएगा along with the DIP. बोलो ना उसको, समझ देगा. हेलो, शांति में जाके करो ना. हेलो, वेट बढ़ गया है ऐसा बोल रहे हो? हेलो, तो जो असर है ना वो 1 महीने में दिखता है. 1 month on DIP diet weight reduces by about 10%.
100 kg का आदमी होगा, 1 महीना डीएपी डाइट करेगा तो 100 का 90 kg आ जाएगा अबाउट, जो लोग मोटे होते हैं। तो 1 महीना करना पड़ेगा तो जाके वेट में असर दिखेगा, पॉजिटिव असर दिखेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट। वो मेरी मम्मी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उनके अभी दवाई 1 महीने से मैंने छोड़ा हुआ है, और उनके लिए अब दर्द ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कभी कंधे में हो जाता है, कभी पैर में नस चढ़ जाती है, कभी गोडे में हो जाता है, तो उसका मैं क्या करूं? देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो इसकी कोई दवा तो है नहीं, वो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ होती हैं। तो मैं ऐसे पेशेंट को सिर्फ 2 ही चीज बोलता हूँ, डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन एंड रेड जूस, पालक का जूस या बीटरूट का जूस अगर ले पाएंगे, और ऐसा करते हुए अगर 4 से 6 महीना होता है तो दिस थिंग कैन बी क्योर्ड, दिस थिंग कैन बी क्योर्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। यस डॉक्टर संदीप। Sir, I want to ask one more question. Actually, we lot of groups are there from your name, Dr. Vishru, and as I am doctor, lot of patients ask me a lot of question about the thing. Lot of them I solved, and there are about 50 patients which are in critical condition like lupus, autoimmune disease. So I am giving lot of the suggestion, but actually I want to directly contact and I want to transfer that person directly to you. But I'm not able to talk to the your means your employees not able to. I'm not able to contact with them. जरा इसमें सिर्फ एक ही बात है, देयर आर नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल एंड नंबर ऑफ फेसबुक पेजेस। नहीं, they are personally contacting me. I have 50 patients. I can treat them, but I want to transfer all the patients to you. तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं bishrup@bishrup.com। सो वो ईमेल एवरी डे माय टीम एंड आई आल्सो ट्राई टू रीड, और उसमें एक भी मेल आता है तो उसको हम डिटेल में हम फॉलो अप करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक नंबर दे मेरे को, मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा, एक नंबर दे दीजिए ताकि ल्यूपस के पेशेंट एकदम क्रिटिकल में है, वो आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, नंबर मैं आपका एक नंबर मेरे को मैसेज आता है, उस पर मैं आपसे प्लीज कांटेक्ट करना चाहता हूँ, पर्सनली कोई भी एक एम्प्लॉई हो। आप चैट पे अपना नंबर दे दीजिए डॉक्टर संदीप, चैट पे आप अपना नंबर दे और उस पे आपको विश्रुप जी का नंबर वो आपको देना चाहेंगे दे सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। इस चैट पे ना अपना नंबर दे दीजिए। श्योर। आप नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखो तो 950। आप लोग प्लीज अपना वो बंद करके रखिए, म्यूट करके रखिए, आपकी आवाज आ रही है कुछ लोगों की। 932626 अल्लाह 95 95 60 93 2626 विश्वरूप चौधरी, इसमें लिख लो ना, गायब नहीं हो जाता। कोई भी आपके म्यूट कर दिया। हाँ म्यूट ही किया। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप हाथ रेस करके यू कैन आस्क एनी इनपुट यू आर हैविंग। या डॉक्टर संदीप। हेलो Sir, actually, I want to ask about oxidized cholesterol, which I have find it is a very high number in fried butter, that is in ghee. So actually, I want to miss none of the videos of yours or any doctors not have any shown the video about this oxidized cholesterol, which is made from the cholesterol oxidation. So people are very confused about ghee. Yes. I always say that कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने दी है, प्लांट को नहीं दी है। दिस मींस प्लांट कैन नॉट मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल, एनिमल ओनली कैन मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। आई एम एनिमल, यू आर एनिमल, सो आवर बॉडी इज एबल टू मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब जब हम प्लांट खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, ये सब प्लांट ओरिजिन है, तो हम कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब आप कोई एनिमल सोर्स से चीजें खाते हैं, जैसे हम चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे या दूध खाएंगे, पिएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप कोलेस्ट्रॉल, डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल।
तो फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में वही वाला रहेगा जो बॉडी खुद बनाता है। बॉडी खुद Exactly. एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, बॉडी उतना ही बनाएगा जितना बॉडी की जरूरत है। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और हम कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, दैट इज व्हाट कैन कॉज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल का ये थ्योरी एक अगर दिमाग में रख लें, दैट इज वेरी सिंपल, तो देयर कैन नॉट बी अ कंफ्यूजन। Okay, thank you sir. और इसके अलावा कोई सवाल किसी के दिमाग में कोई है? हेलो सर। या सोनाली अडवाणी इज दैट? हाँ सर मेरा बेटा 10 साल का है, उसको लास्ट मंथ उसको शुगर हुई है, वो 3 टाइम इंसुलिन लेता है। ये मेरा बेटा बैठा है, लेकिन वो 3 बार मैं उसको इंसुलिन देती हूँ सर, लेकिन कम नहीं होता है तभी भी। अच्छा, तो सोनाली जी आप हमारे 6 जून वाले जो हमारा टॉक था गेटी में, उसमें थे आप? नहीं सर, मुझे आज ही पता चला है, मतलब 2 दिन पहले, तभी मैंने डाउनलोड किया। लेकिन जो आप चार्ट बताते हो ना, मैं उसको वो देती हूँ सवेरे, फ्रूट्स सैलेड ये सब देती हूँ उसको। तो ऐसा कीजिए कि वो देते हुए ब्लड शुगर कितना आ रहा है वो एक बार नोट कीजिए। फास्टिंग का किया और ऐसे 3 दिन का कीजिए फास्टिंग, और लंच के 2 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, और रात को 3 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। ये जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग लेके आपने अभी नंबर नोट किया होगा, जो नंबर उस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये रीडिंग है, ठीक है ना? और साथ में जो जो चीज खाया बच्चे ने उस दिन, जो आपने डीआईपी डाइट के अनुसार खिलाया, उसकी फोटो क्लिक कीजिए। ठीक है सर। सर वो जो खिलाने के बाद फिर उसको शाम को भूख लगती है, मैं उसको फिर कुछ नहीं दे सकती हूँ? नहीं, खिलाना है बच्चे को, तो जितना खाएगा उतना अच्छा है, लेकिन खिलाने, लेकिन 400 शुगर हो जाती है, 500 400। अभी मैंने उसको की फ्रूट खा के, उसने 2 घंटे के बाद मैंने उसकी शुगर टेस्ट की, 300 थी सर, 280। अभी छोटे बच्चों के लिए क्या है कि फ्रूट खाने से पहले आप कल ऐसा कीजिए, फ्रूट खाएगा ना बच्चा सुबह, उससे पहले 150 ग्राम 150 ग्राम रॉ वेजिटेबल, टमाटर और खीरा खिला दीजिए पहले। ठीक है। उसके बाद फ्रूट खिलाइए जितना खाना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, लंच में आप सलाद देते होंगे अकॉर्डिंग, है ना? उससे पहले बच्चे का वेट कितना है? 20 केजी, 35 ऐसी होगा, है ना? तो 35 ग्राम्स, यानी कि इतना सारा पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, करी पत्ता, 3-4 तरह के पत्ते जो बच्चा खा ले, 30 ले लीजिए, 35 ग्राम ले लीजिए। वो बच्चा पहले चबा चबा के खाएगा, लंच से पहले भी, डिनर से पहले भी। एक बात याद रखिए, जो पत्ते हैं वो इंसुलिन का काम करते हैं, पत्ते इंसुलिन का काम करते हैं। कितना पत्ता? जितना बच्चे का वेट है, राइट? 35 ग्राम्स इन पत्ते अगर खा लेगा, उसके बाद सलाद खाएगा, उसके बाद वो जो खाना खाएगा, और तो फिर ब्लड शुगर नहीं स्पाइक होगा। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी और आखिरी बात, बच्चे को जब रोटी देंगे, अगर रोटी देते हैं आप? हाँ सर। अगर तो रोटी देते हैं तो याद रखिए, बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है गेहूं की चना, रागी, बाजरा, बाकी चीजों को मिला के तब रोटी बनाएं और वो रोटी दें, तो उससे शुगर कम बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये तीनों बदलाव कल करके, फिर ब्लड शुगर चेक करके, और कितना कितना इंसुलिन दे रहे हैं वो पूरा चार्ट बना के एक बार अगर दे देंगे, तो उसको बेस रख के तो मैं आगे और एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। लेकिन इसकी मैं जब भी नॉर्मल भी कर रहती है ना, अभी मैंने उसको फ्रूट्स भी दिया ना, कल उसकी नॉर्मल आई 160 आई, फ्रूट सब देने के बाद। आज उसकी 280 आई, और शाम को अगर कुछ खाएगा ना तो 400 500 ऐसे हो जाती है उसकी। और स्वीट में कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं समझ गया, लेकिन आप कल जब सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैंने बोला है वैसे ही करके देंगे, तो मैं कुछ उसका एक कंक्लूजन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बीच में ये खा सकता है ना सर? मतलब कुछ भी इसको भूख लगे तो? कुछ भी नहीं खा सकता है वो। डीआईपी डाइट अगर आपने समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप 6 जून का गेटी में जाके वो वीडियो भी सेव्ड होगा फेसबुक में, वो एक बार देख लीजिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो तो खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, पीनट्स, आलमंड्स, कैशोनट्स, स्प्राउट्स हैं, ये सारा चीज ढेर सारा दे सकते हैं, जब मर्जी दे सकते हैं, जितना मर्जी दे सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, जब भी बच्चे को भूख लगे, भूख लगने से पहले इतना सारा नट्स दे दो बच्चे को, स्प्राउट्स दे दो, फल ढेर सारा दो, वेजिटेबल्स ढेर सारा दो, कच्ची सब्जी। तो बच्चे के खाने को लिमिट नहीं करना है, काइंड ऑफ फूड को लिमिट करना है
किस प्रकार का भोजन करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिमिट करना, ना कि क्वांटिटी को लिमिट करना। फ्रूट्स की कोई लिमिटेशन नहीं, कच्ची सब्जी कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। और स्प्राउट्स है, नट्स हैं, कोकोनट वाटर है, कोकोनट है, डेट्स है, डेट्स मतलब मान लो मीठा खाना चाहता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो ढेर सारा देना है और जब मर्जी देना है, जब बच्चा खाना चाहे तब देना है, राइट। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड है, पैक्ड फूड है, जैसे रिफाइंड फूड है, बिस्किट ब्रेड वगैरह, वो सब चीज जीरो बिल्कुल ही। ठीक है, हाँ, तो ये एक मोटा प्रिंसिपल है, लेकिन एब्सोल्युटली क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों शुगर हो रहा है, छोटे बच्चा ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए कल मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया वैसा आप एक बार बना के आप देंगे तो उसको देख के आई कैन कम टू सम कंक्लूजन, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, ओके सर। और कोई आप में से थैंक यू सर। रीटा आपने कुछ पूछा नहीं, पूछना चाह आपका साउंड बंद है, एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज रीटा जी। हेलो सर। रीटा जी का साउंड ओपन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हेलो सर। या हेलो सर, आई एम महेंद्र। महेंद्र जी सर, आप ही बोलिए। मैंने 6 जून का आपका सेशन अटेंड किया था सर डीआईपी डाइट के बारे में, और मैंने 8 तारीख से आपका डीआईपी डाइट शुरू किया था। तो मैं 2012 से डायबिटिक हूँ और मुझे 2012 में मेरी पहली एंजियोप्लास्टी हुई, 2014 में दूसरा अटैक आया तो दूसरी एंजियोप्लास्टी हुई। तब से मैं कुछ महीनों के लिए इंसुलिन पे भी था, लेकिन मैंने 8 तारीख से आपका डीआईपी डाइट स्टार्ट किया। तो उसके पहले मैंने अपना शुगर लेवल टेस्ट कराया था विथ मेडिसिन, वो फास्टिंग अबव 150 था, और आज मैंने 3 दिन के बाद मेरा शुगर लेवल टेस्ट किया तो फास्टिंग विदाउट मेडिसिन 140 हो गया। तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ? वॉल्यूम ऊपर कर तो तुम भी सुन सकते हो ना, तुम्हें कुछ बोलना है तुमको। बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो आप दवा मत कीजिए, फास्टिंग कंफर्ट इज वेरी वेरी गुड। उनको हेल्प करने की वजह से ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं बोलती हूँ एग्जांपल फॉर अदर पीपल आल्सो कि 3 दिन के अंदर बिना दवाई के ब्लड शुगर वहां पे है जहां दवाई के साथ नहीं, उससे भी नीचे आ गई सर, भी नीचे आ गया, दवाई के साथ 150 था, बिना दवाई के ये स्पीकर का है। अच्छी बात है। यस सर। अच्छा हो गया हाँ, इतनी जल्दी उन्होंने मुझे 2 बार एड्रेस करा पर मैं बोल नहीं पाई। तो मैं हार्ट के लिए और क्या कर सकता हूँ सर? देखो, हार्ट के जो डायबिटीज के लिए आप कर रहे हैं वो आप हार्ट के लिए कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट कोई अलग अलग नहीं है। तो जो आप डीआईपी ले रहे हैं इसी को लेते रहेंगे तो आप हार्ट के लिए कर रहे हैं, हार्ट की समस्या दोबारा नहीं आ सकती। तो मैंने सर डायबिटीज की दवा बंद कर दी 3 दिनों में, तो हार्ट की दवा का क्या करना है, वो बंद करना है कि चालू रखना है? इसमें देखिए, हार्ट का सिर्फ एक दवा है, इसमें हार्ट का ब्लड प्रेशर की अगर दवा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं आप, तो ब्लड प्रेशर इसमें नहीं, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं सर। फिर कौन सी दवा ले रहे हैं? फिर एस्पिरिन ले रहे होंगे? नहीं, कैडिनर्व ले रहा हूँ, योगा रोज गोल्ड है 20/75 और स्टार प्रेस आरएक्सएल। इसमें ना 2 ही चीजें हैं, आप याद रख लीजिए सभी को के लिए, कि एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ब्लड को थिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर अगर है ही नहीं, वैसे भी दवा नहीं, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। ब्लड थिनर लेते हैं, लेकिन ब्लड थिनर लेते हैं वो लोग जो इस तरह के डाइट में नहीं है। ये जो डाइट है ये ब्लड को नेचुरली थोड़ा थिन करता है, राइट। दिस मींस यू डू नॉट नीड एनी मेडिकेशन इफ यू कैन बी ऑन दिस डाइट। तो कंक्लूजन ये है कि आप मेडिसिन फ्री होके भी या होके ही आप आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आपका हेलो रीटा जी, बहुत देर से रीटा जी हैं जो आपसे बात करना चाह रही है। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? बिल्कुल सुनाई पड़ रही है, कैरी ऑन प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपका वीडियोस देखकर मैं 2018 से आपका डाइट प्लान सारा फॉलो कर रही हूँ, और जो मेरी दवाइयाँ थी वो रिड्यूस होकर तकरीबन 20% पहुंच गई थी। मैं मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड लेती थी, जैसे 1000 ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन और 3 mg, शायद 1.5 mg ग्लिम्प्राइड लेती थी मैं सुबह शाम, और जूनिवेद भी लेती थी। आपकी डाइट से मेरा काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था। अभी 1 महीने से मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, मॉर्निंग फास्टिंग भी आ रहा है। अब मैंने पहले दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी थी, तकरीबन सिर्फ 20% लेती थी, 500 mg मेटफॉर्मिन लेती थी, पर अब मुझे फिर से 1000 लेना पड़ रहा है और साथ में ग्लिम्प्राइड। मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, और मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं, और कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, फॉलो कर रही हूँ, और दोपहर में सिर्फ 1 रोटी मैं जौ की खाती हूँ सब्जी के साथ, और थोड़ी सी दाल लेती हूँ।
बाकी पूरा वही आपका डाइट लेती हूँ। और मैं ग्रीन लीव्स भी आपको लेती हूँ, करीब मैं 60 ग्राम्स के करीब पालक और थोड़ा सा इतना पुदीना और धनिया लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा आंवला डालती हूँ और मेथी पाउडर डालती हूँ, वो स्मूदी बनाकर भी साथ में थोड़ा सा दोपहर में और आधा रात को देती हूँ। आपका ब्लड शुगर कितना है फास्टिंग का? डॉक्टर साहब पहले तो मेरा 130, 40, 50 आता था, पर अब करीब 200 के करीब ब्लड मॉर्निंग फास्टिंग आता है। कभी 160, 70, 80, 200 दवाई लेने के बाद आ रहा है। पहले तो बिना दवाई के ही इतना आ रहा था। और मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ रखे हैं। तो इसमें जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे में मैंने देखा है कि फर्क पड़ता है इमीडिएटली अगर आप सनसेट के साथ साथ डिनर कर लें तो, अलॉन्ग विद द सनसेट 7 बजे से पहले, जैसे अभी ये इस टाइम पे डिनर कर लें, अभी जो टाइम हो रहा है, तो फिर सुबह का वो ठीक हो जाता है, बल्कि पूरा साइकिल ही ठीक हो जाता है। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि फिनिश योर डिनर विद द सनसेट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो इसी से ठीक हो जाती हैं। फिनिश योर डिनर विद द सनसेट। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, 7 बजे, 6:30, 6 बजे अगर आपने डिनर कर लिया मान लो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो इसको कीजिए। डॉक्टर साहब मैं रात को तो जो थोड़ा सिर्फ वेजिटेबल्स लेती हूँ, बस स्मूदी लेती हूँ और कुछ डिनर लेती भी नहीं हूँ। और वो मैं फिर 8 बजे करीब शाम को भी एरोबिक को एक्सरसाइज आधा घंटा का करने के बाद फिर मैं सिर्फ बचे हुए सैलेड और स्मूदी लेती हूँ। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि नट्स जैसे अगर लेना है, सोक्ड नट्स, तो वो मैं किस टाइम, क्या फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल थिंग। तो जो नट्स ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं। ये दोनों फ्रूट्स जो है ना, बॉडी अलग तरह से डाइजेस्ट करता है, नट्स अलग तरह से करता है। तो नॉर्मली अलग ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट ना होते हुए, क्योंकि ऐसा कुछ खास हम लोग बीमार नहीं है, तो आप मिला भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वही जो 8 बजे आप ले रहे हैं ना, उसी चीज को आप 1 घंटा पहले कर दीजिए। सेम चीज अभी लीजिए, जैसे आप बोल ही रहे हैं, सैलड लेते हैं और स्मूदी लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 8 o'clock मेक इट 7 o'clock एंड देन यू सी हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी। 7 बजे 8 बजे देखने को सिर्फ 1 ही घंटे का अंतर है, लेकिन याद रखिए जो चीज सनसेट के साथ साथ हम खत्म कर देते हैं डिनर, दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन द ब्लड शुगर द नेक्स्ट डे, जस्ट 1 घंटा आगे करने से। ओके 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 ओके। और कोई नया तो वही मैं पूछ रही थी डॉक्टर साहब कि अगर आपका कोई डॉक्टर, कोई आपके टीम हो जिससे मैं अपना मॉनिटर करवा पाऊँ मैं? आपका मॉनिटर करने के लिए तो बेस्ट 2 तरीके हैं। फ्री में अगर मॉनिटर करना है तो इस तरह के आप सुनीता गांधी जी से बोलिए कि कभी कभी ऐसा मीटिंग करा दे, और अगर आप वैसे आएंगे हमारे ईमेल करेंगे तो वो तो फिर 21,000 दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है, राइट? सो आइदर फ्री Dr. Sunita Gandhi, ask her to hold some kind of session like this. Otherwise, that is expensive, which you don't need, right? तो यही है। और क्योंकि सर मेरा कंसर्न ये था कि मैं दवाई छूटने के बाद फिर मेरे को लेना पड़ रहा है। अभी 1 डेढ़ महीने से तो दिमाग मतलब थोड़ा परेशान होता है कि भाई ये क्यों जब स्ट्रिक्टली कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो उससे थोड़ा मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं यही बोलता हूँ सब पेशेंट को, डोंट गो बाय द नंबर टू स्ट्रिक्टली। ये मत देखिए कि नंबर इतना है उसके पीछे नहीं, आप ऐसे पूछिए अपने आप से, मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, मैं एनर्जेटिक हूँ क्या, मुझे नींद अच्छी आती है क्या, मेरे बॉडी में पेन तो नहीं है, तो दैट शुड बी द पैरामीटर। और ब्लड शुगर इसके बाद आता है। अगर बाकी सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो नंबर डज नॉट मैटर एट ऑल। मैंने अपने जीवन में तो 2-4 बार ही ब्लड शुगर चेक किया होगा, वो भी एक किसी डेमोन्स्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, अदरवाइज इट डजंट मैटर जब तक कि आपकी बाकी सारे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिए। और जो ब्लड शुगर है, ये बड़ा फास्टिंग वाला जो ब्लड शुगर है, सबके लिए बता रहा हूँ, वो मिसचीवियस है, मिसलीडिंग है। तो फास्टिंग वाले ब्लड शुगर पर भरोसा मत कीजिए। आपको अपना असली ब्लड शुगर जानना है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो होता है पोस्ट पैंडल या सोने से पहले वाला ब्लड शुगर है, उसको देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं है। फास्टिंग वाला ब्लड शुगर ज्यादा आने का एक कारण होता है, रात को ब्लड शुगर बहुत डिप कर जाता है करीब 3-4 बजे, फिर वो बाउंस बैक करता है। तो जितना डिप करेगा उतना बाउंस बैक ऊपर करेगा। तो उस बाउंस बैक को हम देखते हैं, हमें लगता है इतना फास्टिंग ज्यादा क्यों है। कई बार तो रात को सोने से पहले आपका 200 होगा और सुबह उठेंगे तो 250 होगा, राइट? तो हमें लगता है यार इतना बढ़ क्यों गया, रात भर तो कुछ खाया नहीं हमने। तो फास्टिंग ब्लड शुगर इज मिस्चीवियस, उसको कभी बेस मत बनाइए। दवाई लेना है नहीं लेना है इसको डिसाइड करने के लिए। डॉक्टर संदीप। Thank you, Doctor. Okay, there is also James Reed who's been waiting with his hands up, and one other person. So next, after Dr. Sandeep, maybe we can take James Reed.
हाँ चल दे दो। सर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्री स्टाइल लिब्रे है, आप इसको पहचानते होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसका मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे को इसको ढूंढने में और परचेस करने में बहुत मेहनत पड़ा। मेरी एक आपसे सलाह है, आप अपने इंस्टीट्यूशन में प्लीज इसकी अवेलेबिलिटी करवाइए और पेशेंट को डिलीवर करवाइए। पेशेंट देने को तैयार है, मिलता नहीं है। और ये जो शुगर का अप डाउन ये है, ये इसी से समझ में आएगा कि कितना मॉर्निंग में बढ़ जाता है, घट जाता है और कैसा होता है। इसको लगाने के बाद पेशेंट बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मुझे मिल गया और मैं दूसरों को देता भी हूँ और दूसरे मेरे को रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन प्लीज आप करिए। मैं 1-2 बार आपके यहाँ फोन भी लगाया था, तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं कर पाया, उनको भी शायद दिक्कत हो, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये फ्री स्टाइल लिब्रे अब मेरे ख्याल से स्टॉक में है, कोई अगर मांगता है हम देते भी हैं, इंडिया में भी, बाहर भी हम भेजते भी। मैंने थोड़ा इसको आप अपने चैनल पे एक बार डिमोस्ट्रेट करके कुछ भी करिए, क्योंकि ये अगर पेशेंट के पास पहुंच गया तो ये उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद वो आपसे शायद बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगा। मतलब मैं खुद 10-15 पेशेंट में लगा चुका हूँ, बहुत इफेक्टिव है। इसको थोड़ा प्लीज और क्लियर करेंगे अपने चैनल। हाँ, मैं इसको करूंगा, टाइम टाइम करता रहता हूँ, लेकिन यस वी विल जस्ट अवेयर कर देंगे इसको। थैंक यू। जेम्स आप कुछ पूछना चाह रहे थे, फिर उसका प्रिंस भी। जेम्स आपकी आवाज नहीं आ रही। जेम्स जी अपना मोबाइल को म्यूट कर दीजिए, किसी एक चीज को, आपके शायद 2 चीजें ऑन है, किसी एक चीज को करिए। Good evening, ma'am, and good evening, Dr. Roy. My question here is regarding just 1 minute, please. My question here is regarding hypothyroidism. I just want to know whether it is curable or a patient has to take the medicines continuously throughout life, and what are the food they should eat, or what are the food that they shouldn't eat. जेम्स, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वी हैव hundreds of patients of thyroid, hypothyroid, to be very specific, or it takes about 1 month to reduce the medicine by 50%. It takes about 3 months to be free of medicine. तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर जो थायराइड के पेशेंट हैं, आप में से कोई आपके लोग, you take the medicine and start the diet. 1 महीने बाद you check the TSH, thyroid stimulating hormone, thyroid test कराइए, और उस थायराइड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट को देख के फिर यू हैव टू टेपर डाउन द मेडिसिन बाय 50%। देन 1 महीना और कीजिए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए, फिर दोबारा अगर रेंज में है, इफ इट इज इन द रेंज, देन यू ड्रॉप द 50% आल्सो, दिस मींस यू आर मेडिसिन फ्री। देन यू गो फॉर 1 मंथ विदाउट मेडिसिन एंड देन चेक अगेन। और अब अगर आपका थायराइड लेवल, TSH लेवल 10 से नीचे है, 10 से नीचे भी है बिना मेडिसिन के, दैट मींस इट इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, नीड नॉट टू कंटिन्यू द मेडिसिन। तो दैट इज अ रूल ऑफ थंब। इट टेक्स 1 महीना से लेके 3 महीना टू बी फ्री फ्रॉम थायराइड मेडिकेशन विद द DIP डाइट। बट देन दवाई बंद करने के बाद ये डाइट पे तो रहना पड़ेगा लंबे समय तक। So that means it is curable, right? Yeah, always. It is curable always. Because we have met many doctors and they say that you have to take the medicine lifelong, that is you cannot stop the medicines, and when you stop the medicines there will be problems for you. So this is one question that we have. If you stop the medicine and don't do anything, आपने मेडिसिन स्टॉप नहीं किया, आपने फूड एज मेडिसिन यूज किया। आपने मेडिसिन स्टॉप कर दिया, लेकिन उसकी जगह फूड एज मेडिसिन यूज किया। यू एट द फूड इन सच ए वे कि बॉडी को उस फूड को मैनेज करने में मुश्किल नहीं आ रही। तो राइट, तो उसके लिए क्या क्या फूड्स रेकमेंड करेंगे डॉक्टर? व्हाट फूड शुड DIP डाइट, और DIP डाइट अगर आपने नहीं सुना तो 6 तारीख वाला वीडियो देखेंगे, तो DIP डाइट इसमें एक्सप्लेन्ड है, यू सी दैट। Okay. Yeah, Prince, you wanted to ask. Doctor, I want to ask question. Prince काफी देर से हाथ रेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्नेहल। हेलो। यस। हाँ डॉक्टर, मैं 15 साल से एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या DIP डाइट से एपिलेप्सी पे ऑप्शन? लेट प्रिंस पहले काफी समय से हाथ रेस कर रहे हैं। यस। हाँ सर, आ रही है मेरी आवाज? या आपकी आवाज आ रही है प्रिंस? हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैंने अभी से ही कोरोना से ही आपकी वीडियोस में देख रहा हूँ और शेयर्स भी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 10 से 12 दिन ही हुए हैं, मैंने चालू की है DIP डाइट आपको देख करके। तो जैसे मेरे अभी डैंड्रफ थे, जो मेरे को मिल नहीं रहा था इलाज डैंड्रफ का, तो डैंड्रफ तो 3-4 दिन में निकल गए।
मैंने एक आपका वो वीडियो देखा था जिसमें आपका वो व्हीट ग्रास जूस का बताया हुआ था उसमें, तो वो आप अभी किसी वीडियो में दिखता नहीं है मेरे को, आप वो बोलते हो कि एडवाइस देते हो पीने के लिए, तो मेरे को थोड़ा वो डाउटफुल था कि वो लूं कि नहीं लूं, इसीलिए वो पूछना था मेरे को। हाँ प्रिंस, वो मैं बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो व्हीट ग्रास का जो सीजन होता है वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक, और ये जो सीजन है जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, गेहूं के ज्वारे वो उगते नहीं है ठीक से, या उगते ही नहीं है फॉर दैट मैटर, या मैं नहीं उगा पाता हूँ, यहाँ पे नहीं उगते। तो जब वो उगते हैं उस दौरान मैं उसको फिर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे चलो हम उगा ही नहीं पा रहे हैं तो ये फ्यूटाइल हो जाएगा। तो व्हीट ग्रास इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द प्लांट्स। जितने सारे चीजें इंसान खा सकता है पी सकता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई चीज है, अगर आप बोलेंगे किसी एक चीज का नाम लो, तो दैट इज व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे। लेकिन वो दुकान में बेचने को नहीं मिलता, तो आपको घर पे ही उगाना पड़ेगा, और उगाने का सीजन सितंबर टू फरवरी या मार्च तक है। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल फूड। इसके लिए मैंने एक किताब तो इसी के ऊपर बनाई है, हील विदाउट पिल, पूरी। हाँ वही देखी थी मैंने, उसी पर ही फिर मेरे को आया था, क्योंकि मैंने पहले आपको फॉलो नहीं करता था, अभी कोरोना से ही मैंने आपकी वीडियोस देखने शुरू किए हैं, तो उसमें मैं पहले पुरानी सब सर्च करता गया, फिर डिलीट हो गई आपकी फेसबुक में, यूट्यूब में सब, तो मेरे को दिखा फिर। और एक और चीज पूछना था सर मेरे को, जैसे मेरी वाइफ को थायराइड है, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि 10 तक नीचे है तो नॉर्मल है, तो उसको तो 1.1 ऐसा कुछ है, मतलब लगभग कुछ इतना है, तो भी वो बोलता है कि 1 से नीचे रहना चाहिए, डॉक्टर ऐसे बोलता है कि 1 से नीचे रहना चाहिए कंटिन्यू फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, उसके बाद हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे दवाई। नहीं ऐसा ना कि 1 तो अभी ठीक है, दवाई के साथ वो 1 या 1 से नीचे दवाई के साथ है वो, राइट। हाँ जी हाँ जी। दवाई छोड़ेंगे तो वो एकदम शूट करेगा। तो मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि दवाई छोड़ने से पहले यू बी ऑन डाइट, राइट। फिर 1 महीने बाद देखना कि वो दवाई वो 1 से नीचे आ जाएगा, अब दवाई छोड़ेंगे तो वो 10 के अंदर ही रहेगा, राइट। नॉर्मली जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 6 बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा 10 के अंदर रहेगा तो इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है सर। हेलो, अभी तक कोई भी सवाल नहीं? सर there are a lot of good hands evening up. sir, good evening. Wait, Hello, just sir. a minute. We have got an Galaxy J6 that's for a long time with the hands up, and then F3. So we can take Galaxy J6. We don't know the name. Yeah, Galaxy J6. या आप अपने फोन को अनम्यूट कीजिए एंड देन यू कैन जस्ट यस। Galaxy J6. आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। गैलेक्सी J6 आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो आ रही है। हेलो सर, अकॉर्डिंग टू ACP गाइडलाइंस जो आपने बताया है कि 7 to 8% में HbA1c होना चाहिए विदाउट मेडिसिन, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि 250 अगर आता है विट इज तो 250 जो है सर वो इट इज नॉर्मल पोस्ट प्रांडियल, तो HbA1c अगर 8% है तो 180 to 200 आता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 250, सो हाउ इट कोरिलेट बिटवीन दिस? या इसमें जो आप बोल रहे हैं HbA1c को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डेली ब्लड शुगर, राइट। उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उसके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में अगर आप फिट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 180 और सो, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो 250 है। तो दुनिया में जो ज्यादा प्रेवलेंट और ज्यादा साइटेड फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला के बेसिस पे रखेंगे तो वो 250 आएगा। लेकिन उस कैलकुलेशन को आप तक पहुंचाने के लिए कि वो एग्जैक्टली कैसे 250 आता है, वो कौन सा वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने क्यों यूज किया है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। उसके लिए आई हैव रिटन अ कंप्लीट बुक ऑन इट। यस सर, यस सर। तो बुक का मैं एक पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ। पीडीएफ आप तक कैसे पहुंचेगा, मे बी मैं फेसबुक में पोस्ट करूंगा या मैं डॉक्टर सुनीता गांधी को दे दूंगा ताकि आप उसको देखें। एक्चुअली मेरे पास वो बुक है सर, वो मेरे पास बुक है, वैसे वो फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा सर। फॉर्मूला मैंने जहाँ से लिया वो भी उस बुक में कोट किया है। ओके सर, उस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो 8.4% इसके आसपास ही आता है। यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर, अगर कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपका अगर शुगर लेवल अगर 140-150 के ऊपर जाता है तो ये भी नेफ्रोपैथी और वैस्कुलर डैमेज वगैरह आपके पास होता है सर, तो 150 और 250 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है सर? हाँ देखिए दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अभी तक के जो एविडेंसेस हैं
एकॉर्ड ट्रायल है, एडवांस ट्रायल है, VADT ट्रायल है, UKPTS ट्रायल है। तो ये चारों ट्रायल उसी बुक में भी मैंने डाला है, जो बुक क्या मैं बता रहा था आपके पास है भी अभी। तो उस ट्रायल में देखा गया है वो 150 नहीं, अगर 250 से नीचे नीचे रहता है कभी भी सेफ रेंज। वो ट्रायल सारे ट्रायल अगर पढ़ेंगे तो उसमें एविडेंस नया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो आप बोल रहे हैं 150 से ऊपर, वो ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के गाइडलाइंस हैं, बट अमेरिकन और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपने कोट किया ACP गाइडलाइन। दो तरह के गाइडलाइन दुनिया में है। ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन वो बोलता है 150 हो जाएगा तो आपके नेफ्रोपैथी हो जाएगा या रेटिनोपैथी हो जाएगा, और ACP गाइडलाइन वो बोलता है 250 से नीचे रहेगा तो भी ठीक है, राइट। तो अब दो गाइडलाइन है दुनिया के, और दोनों में से किसकी बात माने? आप उसकी बात मानिए जिसके बैकअप में एविडेंसेस भी हैं टू सपोर्ट दैट। ADA जो बोल रहा है 150, उसके बैकअप में एविडेंस देखेंगे तो एविडेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ गाइडलाइन मिलेंगे, लेकिन गाइडलाइन को सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जो ACP गाइडलाइन है जो कि आपके पास ऑलरेडी है, उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने सारे एविडेंसेस दिए हैं, बड़े बड़े ट्रायल किए हैं। तो इसका मतलब हमें दोनों में से एक को चुनना है, तो हम एविडेंस वाले को चुनेंगे, दैट इज ACP गाइडलाइन व्हिच इज सेइंग एनीथिंग लेस देन 250। गुड इवनिंग सर। सर या यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्टर सुनीता गांधी, आपने किसी का नाम लिया था जो नेक्स्ट काफी समय से गैलेक्सी A30। सर आई वांट टू आस्क माय क्वेश्चन। Oppo F3. हाँ, Oppo F3. Oppo F3. Yeah, you have been. Hello, sir. Hello. We've been waiting for some time. Oppo F3. That's a lady right here. चश्मा पहन के और रेड राइट, आपका नाम नहीं लिखा है। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बताइए। मुझे क्वेश्चन पूछना। हेलो सर। यस सर, मुझे मेरा क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली मैं 15 साल से एपिलेप्सी के मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उस मेडिसिन को मुझे कंटिन्यू रखने के लिए डॉक्टर ने बोला है, और वो कहते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता रहेगा। अगर कोई मिर्गी आती है फिर से, तो फिर से आपको वो मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या मैं वो मेडिसिन DIP डाइट की वजह से बंद कर सकता हूँ? नहीं है। एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए जो गाइडलाइन है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एपिलेप्सी क्यों होता है? दुनिया में 3 तरह की चीजें हैं which triggers epilepsy. 3 kind of food that triggers epilepsy. वो फूड अगर आप अपने खान पान से अलग कर देंगे तो आपको एपिलेप्सी आ नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रिगर ही नहीं है। तो वो तीनों ट्रिगर अगर आप हटा देंगे, उनमें से हो सकता है कोई एक आपके लिए ट्रिगर हो, लेकिन उन 3 में से कौन सा एक है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये तीनों में से कोई एक है। नंबर 1 ट्रिगर इज द एनिमल प्रोटीन। इफ animal protein is not going inside your mouth, the trigger is not there, and if the trigger is not there, epilepsy हो नहीं सकता। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो लाइट आ नहीं सकता, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कितना भी क्यों ना हो। ठीक उसी तरह से इपिलेप्सी के आपके नेटवर्क ऐसा हो कि इपिलेप्सी प्रोन हो, लेकिन उसको स्विच ऑन करना है तो ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर, पहला ट्रिगर, द मोस्ट लाइकली थिंग इज एनिमल प्रोटीन। This means you have to avoid animal food that may include dairy product as well. पहली चीज। दूसरी चीज जो ट्रिगर करता है which is universally accepted, that is grains, गेहूं ट्रिगर करता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि राइट। और तीसरी चीज रिफाइंड थिंग, एनीथिंग which is in refined form, right, that also triggers। गेहूं को ब्रॉडली बोले तो ग्लूटेन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्लूटेन, रिफाइंड, एनिमल प्रोटीन, ये तीनों में से आपके केस में हो सकता है एनिमल प्रोटीन कल्प्रिट हो, बाकी 2 कल्प्रिट ना हो सकता है कि भाई ग्लूटेन कल्प्रिट हो, बाकी 2 ना हो सकता है तीनों कल्प्रिट हो। तो बेस्ट तो ये है कि तीनों ही छोड़ दो, क्योंकि तीनों का आपके हेल्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसके नहीं होने से आपका न्यूट्रिशन कुछ मिस होगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि तीनों चीज छोड़ दो। आई कैन टेल यू दैट नेक्स्ट एपिलेप्सी विल नेवर हैपन, राइट। फिर और पहली बात, और दूसरा जो मेडिसिन की बात आप कर रहे हैं, जो आप खुद ही भी बोल रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल है। मेडिसिन डू नॉट गारंटी कि आपका अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बोलते। मेडिसिन भी दे रहे हैं और बोलते हैं एपिलेप्सी भी होगा, राइट, एक्सपेरिमेंटल है।
जबकि वो एक्सपेरिमेंटल है और खतरनाक भी है, तो उसको क्यों लेना? और जबकि ये प्रूवन है और इससे पक्का ही अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, तो लेट अस अवॉइड दिस। तो इसको अवॉइड करेंगे तो कितनी भी पुरानी हिस्ट्री क्यों ना हो एपिलेप्सी की, यू कैन अवॉइड द नेक्स्ट एपिलेप्सी, दैट इज द ट्रूथ। ओके सर, तो फिर मैं मेडिकेशन बंद करके डीआईपी डाइट पे जा सकता हूँ या फिर धीरे धीरे मेडिकेशन को बंद करना चाहिए? देखिए मेडिकेशन, मैं अपने पेशेंट्स को तो ये बोलता हूँ मेडिकेशन आप इमीडिएटली बंद कर दो और डीआईपी डाइट पे चले जाओ, और ग्लूटेन फ्री भी रखो, क्योंकि डीआईपी डाइट में भी ग्लूटेन होता है, उसमें से ग्लूटेन वाला हिस्सा भी हटा दो, तब बन गया आपका डाइट। ओके सर। या डॉक्टर संदीप, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? थैंक यू सर। ये जो पेशेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये एपिलेप्सी का जो अभी बात कर रहा है पेशेंट, ग्लूटेन का बात कर रहा है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, शायद आप इसको बताएंगे तो लोग जल्दी समझेंगे। ये जो मिलेट्स होते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये मिलेट्स टोटली ग्लूटेन फ्री है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है और ये कोई बताता नहीं है। तो ये एक बार प्लीज इसको थोड़ा कंसिडर करिएगा। मैंने बहुत सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, 10-15 पेशेंट पे मैंने ट्राई भी किया है, इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। तो इस पे प्लीज थोड़ा स्ट्रेस करिएगा एक बार। हाँ, ये जैसे मिलेट्स हैं, मिलेट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप बोल रहे हैं इवन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं डायबिटीज की बात करूँ, मैं डायबिटीज की बात करूँ। यस यस, तो वो लोग जब रोटी वगैरह लेंगे तो मिलेट का लेंगे, तो दैट विल हेल्प रादर देन टेकिंग गेहूं का। तो ये तो एक मैंने 5 मिलेट्स का बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप उसको थोड़ा स्टडी करिएगा, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। आप थोड़ा बताएंगे तो लोग जल्दी इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपकी बात लोग समझते जल्दी है और मैं आपका एक ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, बस मेरा इट रियली वर्क्स। ये मैं कभी-कभी इसको एम्फसाइज करता हूँ, बट देयर इज अ राइट प्लेस Okay, so now we have मैम एक क्वेश्चन है मैम। मैम प्लीज जी, एक मिनट रुकिए, मैं बता रही हूँ ऑर्डर क्या है, क्योंकि बहुत देर से कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो एक है आपका ओप्पो F3, एक लेडी है जो अभी अनम्यूट किया गया है इनको, तो अगर आप बोलना चाहें तो अभी बोल सकते हैं, बहुत देर से मैं आपको 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। उसके बाद है अभिमन्यु, उसके बाद है अभिमन्यु, उसके बाद है अशोक कुमार, उसके बाद है उज्जवल रुईदास, उसके बाद है दिव्या जैन, उसके बाद है अभिजीत, उसके बाद है जून, उसके बाद है केसस। हेलो मैम। हेलो डॉक्टर। बोलिए। कैरी ऑन। हेलो। हाँ, मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो मुझे कौन सी डाइट लेनी चाहिए? मैं 15 ईयर से डायलिसिस करा रही हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, आई कैन डू एवरीथिंग, ऑल द वर्क। तो किस तरह की मेरी डाइट लेनी चाहिए मुझे? देखिए जैसे हमें तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे मना कर रखे हैं, फ्रूट्स वगैरह में 2-3 फ्रूट्स को छोड़ के कोई भी फ्रूट्स मना करके रखा है। मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ, और मैं नेचुरोपैथी में मेरा इलाज भी हुआ है, मैं बिलीव भी करती हूँ, और मैंने यूरिन थेरेपी भी करवाई है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम सुमन कोठारी। सुमन जी, हमारे पास डायलिसिस के और किडनी पेशेंट भरमार है आजकल, तो देश में कैंसर के बाद ये किडनी पेशेंट ज्यादा है। हाँ जी। तो हाँ जी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम भरपूर सब तरह के फ्रूट्स खिलाते हैं, उनको नारियल पानी खूब सारा पिलाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको रॉ वेजिटेबल देते हैं। तो कुल मिलाकर वो चीज जो किडनी पेशेंट को सारे हॉस्पिटल में देखता हूँ, आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे किया होगा, देते हैं जिसमें लिखा ही होता है ये वेजिटेबल। हाँ, ये नौखाना ये नहीं, पर मैं पूरा वो फॉलो नहीं कर रही हूँ। आई एम द बेस्ट पेशेंट इन माय हॉस्पिटल एंड इन इंडिया। इन इंडिया, आई कैन से इन इंडिया। ग्रेट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इग्नोर की अभी तक जो गाइडलाइन है कौन से फ्रूट खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, आप सिंपली जो डीआईपी डाइट है वो डीआईपी डाइट फॉलो कीजिए, और डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे सिर्फ एक चीज कीजिए डीआईपी डाइट के साथ, प्लेट टू लंच में मत लीजिए, सिर्फ फ्रीक्वेंटली रहिए, डिनर में प्लेट टू लीजिए, पूरे डिनर में प्लेट ओनली इन डिनर। इफ यू कैन डू इट दैट बिकम्स द फॉर डायलिसिस पेशेंट। अच्छा, इसमें रिस्पांस ये आएगा, मैंने जो देखा है अपने पेशेंट्स में, आप में भी ये देखा है कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली वो आधी रह जाती है। अगर वो हफ्ते में 2 बार कर रहा होता है तो वो हफ्ते में 1 ही बार, 15 दिन में 1 बार डायलिसिस होती है। ये है कि आप डीआईपी डाइट माइनस प्लेट, that becomes your diet. Yeah. Okay, thank you. So now we have Abhimanyu, Abhimanyu ji, Abhimanyu Karam Chandani. Yes, I am Abhimanyu here. Hello.
This is Abhimanyu. Yes, yes, Abhimanyu ji. Yeah, thoda louder. My age is 60 years. I am diabetic for last 12 to 15 years. अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पैरों में बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. अभिमन्यु जी, आपकी आवाज नहीं आई. अब आई है? बहुत धीरे धीरे आ रही है. जोर से बोलना पड़ेगा या पास जाके बोलिए. मैं 60 ईयर का हूँ, उम्र मेरी 60 साल है, 15 साल से डायबिटिक हूँ. हाँ, अब आवाज आ रही है. कैरी ऑन. 15 साल से डायबिटिक हूँ, 60 साल का हूँ. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे न्यूरोपैथिक पेन है टोज में, पैरों के टोज में. तो उसके लिए कोई सजेशन है? मैं बीपी की भी दवाई लेता हूँ और मेरा स्ट्रेस भी पॉजिटिव है. इसमें अभिमन्यु जी, आप लगता है थोड़ा लेट आप पहुंचे हैं. तो दो चीजें, तो डीआईपी डाइट पे रहिए, नंबर 1. नंबर 2, मैंने एलोवेरा से मसाज करना बताया था, एक्सप्लेन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. इस वीडियो के जब खत्म होने के बाद आप एक बार फिर देख लीजिए, और 6 तारीख वाला वीडियो देखेंगे तो डीआईपी डाइट के बारे में बताया था. तो आप डीआईपी डाइट प्लस एलोवेरा से मसाज, ये दोनों चीज करेंगे तो इट टेक्स फॉर दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, neuropathy etc, it takes about say 3 months to 4 months to see a reversal of it. 3 months to 4 months of patience also. तो इस दोनों चीज को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए अपने लाइफस्टाइल में. मैंने आपका 6 तारीख का वीडियो देखा था, तो मैंने शुरू किया है, 3 दिन हो गए. तो इट्स अ मैजिक. मेरा शुगर फास्टिंग 140 आता था तो 120 हो गया. बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. 190 था तो अभी 160 170 आ रहा है. बहुत जबरदस्त. तो बस मुझे और एक दिक्कत है, मुझे अभी शक आ रहा है कि मेरी मेमोरी भी कम हो रही है, अगर भूल जाता. आवाज नहीं आ रही. देखिए, मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट बात सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब आप डायबिटीज पेशेंट होते हैं, फॉर दैट मैटर जब आप दवाइयों पे रहते हैं लंबे लंबे समय तक, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये जो मेडिसिन आप लेते हैं ये शुगर को लेके ब्रेन में स्टोर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्किंसन है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है. ये तीनों बीमारियां आर द गिफ्ट ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन. पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर आर द गिफ्ट ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन. तो लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज मेडिसिन छूट जाएगा और जैसे जैसे आप इस तरह का डाइट, डीआईपी काइंड ऑफ डाइट पे रहेंगे लंबे समय तक, तो वो आपके जो साइड इफेक्ट हुए थे, चाहे वो रेटिनोपैथी था, चाहे वो कैटरैक्ट था, चाहे वो ग्लूकोमा था, चाहे वो किडनी फेलियर था, चाहे वो मेमोरी लॉस था, वो धीरे धीरे मैं देखा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months to 9 months वो रिवर्स होने लगते हैं. तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग कि पहले ब्लड शुगर कंट्रोल हो, सेकेंड स्टेज दवाई से पीछे छूटे, उसके बाद बाकी रिवर्सल होगा. तो अभिमन्यु जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसमें आप जब पेशेंस रखेंगे और 9 महीना तक करेंगे, तो जो मेमोरी का लॉस का जो फील कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन बात है डायबिटीज के पेशेंट में, वो चीज भी रिवर्स होगी. बट इट टेक्स, जैसे पार्किंसन है, इसको 9 महीने लगता है विद दिस डाइट, 9 months. बट द थिंग इज 9 महीने में ठीक हो जाता है. दैट इज अ गुड थिंग. लॉन्गर टाइम, बट अल्टीमेटली देयर इज अ क्योर. सर, B12 और कैल्शियम का ये तो नहीं होगा, कमी नहीं हो जाएगी डीआईपी डाइट में, B12 एंड कैल्शियम? देखिए, पर्सनली मैं, इट हैज बीन मोर देन 12 years नाउ आई एम ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट, एब्सोल्युटली दिस काइंड ऑफ डाइट. देखिए, मेरा अभी तक तो कैल्शियम, B12 वगैरह कम नहीं हुआ, पहली बात. दूसरी बात, आई हैव सीन मोर देन 22,000 पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट, जिनको हम फॉलो अप करते हैं लंबे समय तक. तो कैल्शियम, विटामिन B12, ये सारी चीजें कमी कभी नहीं होती. इसलिए निश्चिंत होकर आप करें. और आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस एंड माय पेशेंट एक्सपीरियंस, दीज 2 things विल बी टेकन केयर ऑफ. आप जब रॉ खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसके ऊपर एक बैक्टीरिया की लेयर होती है, बैक्टीरिया की लेयर जो धोने से भी नहीं जाती. वही बैक्टीरिया पेट में जाता है, और चाहे हम इंसान हो या जानवर हो, B12 बैक्टीरिया बनाता है. और हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वो नहीं होता है बिकॉज हम रॉ फूड खाते ही नहीं है.
इसीलिए हमें B12 या तो सप्लीमेंट फॉर्म में लेना पड़ता है या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो आता है. But since you are having raw food, you are having that bacteria, and that bacteria is directly manufacturing B12 in your body. So B12 की कमी नहीं होगी, ये तो मैं पक्का बता सकता हूँ. Next, Dr. Sunita. हेलो सर. Sunita, you are हेलो mute. सर. सर मुझे कुछ पूछना है. हेलो. हेलो. हाँ, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ. हेलो सर. अभिजीत आप बात. नेक्स्ट अशोक कुमार जी है नेक्स्ट. हाँ जी, मैं अभिजीत. नमस्ते. हेलो मैम. हेलो सर. अशोक कुमार सर. नमस्कार. नमस्कार. सर मैंने आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आपकी इतनी अच्छी बातें होती हैं जिसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, और आप मानेंगे नहीं, इस कोरोना के डर के वजह से हम लोग इतने ज्यादा पैनिक थे, बट आप ऐसे हैं जिनकी बातें सुन सुनकर हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलती है. इवन दो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको कभी फीवर हो रहा, कुछ हो रहा, मैं सबको मॉनिटरिंग कर करके और आपकी डाइट को बता के उनको रिलीफ दे रहा हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे सिर्फ अभी एक बात पूछनी है. मेरे फादर को अभी पता चला है कि उनकी किडनी सिकुड़ रही है और उनको डायबिटिक और हाइपरटेंशन है. तो मैंने आपकी डाइट तो शुरू कराई है जिससे डायबिटिक उनका कंट्रोल में आ गया है, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, बट हाइपरटेंशन अभी उनको है और किडनी सिकुड़ रही है. तो इसके लिए क्या मैं डीआईपी डाइट को ही कंटिन्यू करूं? मुझे थोड़ा एक्चुअली किडनी की वजह से थोड़ा डर है कि मैं सही हूं या नहीं हूं, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, डीआईपी डाइट को कीजिए. जो इसका असर जो सबसे पहले होता है 3 दिन में डायबिटीज में होता है और फिर 3 मंथ्स में वो किडनी पे आता है, किडनी ठीक होना शुरू हो जाता है. तो यू हैव टू कंटिन्यू दैट. किडनी ठीक होने का पहला स्टेप है ब्लड शुगर को ठीक करना. जब ब्लड शुगर ठीक होने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक होता है. ये दोनों ठीक होते हैं तो थर्ड स्टेप इज किडनी अपने आप ठीक होता है. तो इसमें अशोक कुमार अलॉन्ग विद डीआईपी डाइट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारे किडनी के पेशेंट्स के लिए कि हमारे बॉडी में एक थर्ड किडनी है, तीसरा किडनी, दैट इज योर स्किन. आपके स्किन से भी टॉक्सिक्स वैसे ही निकलते हैं, केमिकल वैसे ही रिलीज होते हैं जैसे कि यूरिन से पास होते हैं. तो योर थर्ड किडनी गिवन बाय द गॉड इज योर स्किन. स्किन को किडनी के रूप में यूज करने के लिए वन वे इज सनलाइट. तो जो किडनी के पेशेंट हैं अगर रोज 30 मिनट्स घड़ी देख के 30 मिनट कम से कम सनलाइट में बैठेंगे तो उनका थर्ड किडनी एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज देयर स्किन. जब स्किन एक्टिवेट हो जाएगा विच टेक्स अबाउट 15 डेज टू एक्टिवेट, तो जो किडनी पे लोड है वो कम होगा एंड इट विल गेट टाइम टू रिकवर, राइट. तो along with DAP diet, strictly let the sunlight fall on the skin for about 30 minutes every day of your life. If you can do it, तो किडनी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा. इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किडनी रिकवर होता है और यस सर. सर बट अभी जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ी उनको खुजली की भी प्रॉब्लम आ रही है स्किन में, पूरे स्किन में ना थोड़े पैसेज आ रहे हैं, तो खुजली की प्रॉब्लम आ रही है. हालांकि सन में तो बैठते हैं और आपको देख के सर मुझे विश्वास बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने आपके 1-2 सेमिनार भी अटेंड किए हैं. और सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि अभी यूट्यूब से डिलीट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा और ये फेसबुक पे भी डिलीट हो गया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हम लोग अपने दोस्तों को इजीली फॉलो करा पा रहे थे. सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो आप जूम पे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हैं तो सो दैट अवेयरनेस आ जाएगी लोगों के अंदर. जो लोग बिछड़ गए नहीं मिल पा रहे हैं तो थोड़ा मुझे लगता है वो धीरे धीरे ऐड होते चले जाएंगे. Yes, sure, I'll try. बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये इस मतलब इतना अभी तो सर ऐसा फील होने लग गया कि घर में हमें बैठ के बहुत डर लगता है कि अभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते. बट ये जो होप अभी आपके थ्रू जुड़ रहा है, मतलब मिल रहा है हम लोगों को ना, ये बहुत ज्यादा मतलब जो सुकून दे रहा है. अदरवाइज तो सर मतलब बिल्कुल हेल्थ सिस्टम इतना फेलियर हो चुका है कि हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं घरों में बैठ के. That is true. इसीलिए आप सबको यही गुजारिश है कि ये अगर जूम पे अगर गेटी के उसमें आता है तो उसको भी शेयर कीजिए लोगों तक. यस. लोगों को सिंपल टेक्निक्स हैं और यही टेक्निक काम करते हैं. हॉस्पिटल कभी काम करता नहीं है. एक्चुअली सर ये हमें गेटी पे आपकी आईडी अगर आपकी जूम की आईडी पहले मिल जाती तो मुझे लगता है कि सर 1000 से भी ज्यादा लोग आज ज्वाइन हो जाते हैं. मुझे पहले था, मैंने मैसेज भी डाला था कि जूम पे हमें आईडी पहले दे दी जाए सो दैट हम अपने नियर एंड डियर्स को या जितने भी कांटेक्ट हैं सबको हम स्प्रेड कर सकते थे. हाँ, डॉक्टर गांधी, यू मस्ट नोट दिस सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन डू इट बेटर. या नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ. विष्णु जी, अशोक जी धन्यवाद. मैं विष्णु से कहना कि
टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, 7 बज रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत देर से पेशेंटली वेट किया है। उत्कर्ष, दिव्या जैन, अशोक कुमार जून, और इसके अलावा स्नेहल दहात एंड रायदास एंड पूरन। सो ये लोगों ने हाथ उठाए हैं बहुत देर से। हेलो आपका मैम, क्या विचार है अभिजीत ऑल्सो? सो क्या करना कि 7 बजने वाला है या बज गया है? या 2-3 क्वेश्चन और ले सकते हैं क्विकली जो मैम क्वेश्चन है तो सब लोग संक्षेप में बोले प्लीज। फॉलोड बाय दिव्या जैन। हाँ जी, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ। सुनाई दे रही मेरी आवाज? दिव्या बोले डॉक्टर सुनीता। हेलो हेलो। आई थिंक उत्कर्ष जी आपसे पहले अगर बात हो गई हो तो प्लीज मत दोबारा कहिए। मेरे ख्याल से दिव्या जैन जी ले लें। हेलो सर, वो सर मेरा एक प्लीज पेन दिव्या है जैन आप ले लें नेक्स्ट। का प्रॉब्लम। हेलो, हाँ मैं दिव्या जैन बोल रही हूँ। या कैरी ऑन। हाँ सर, मुझे पूछना था सर, जैसे आप बोलते हो रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ये सब खाना है, बट सर आजकल जो वेजिटेबल फ्रूट सब हाइब्रिड हैं या फिर सब में पेस्टिसाइड्स का बहुत इफेक्ट रहता है या केमिकल इफेक्ट रहता है, कार्बाइड रहता है, तो सर इससे कैसे डील करेंगे? हाँ दिव्या, ये बात सच रहता है, सब कुछ कार्बाइड और ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट को 3 दिन तक कम से कम करना है, नहीं तो मैं बोलता हूँ 1 ही दिन में असर हो जाता है। किडनी पेशेंट को 3 महीने में असर होगा, नहीं तो अदरवाइज अगर ये सब नहीं होता तो 3 महीने। तो इसका जवाब ये है कि इन स्पाइट ऑफ ये सब केमिकल कार्बाइड होने के बावजूद भी ये डाइट काम करता है। और मैंने तो देखा अपने पेशेंट्स पे, यहाँ भी आपने देखा जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया 3 दिन का, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने ऑर्गेनिक कहीं से ढूंढ के खाया होगा। जो नेक्स्ट डोर मार्केट में मिल रहा है वही खाया होगा। तो मैं ये बोलता हूँ दिव्या कि हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक को प्रमोट करें और उसकी आवाज बने, हम एक सोशल मूवमेंट करें, क्योंकि हम ही सब इसके पार्ट हैं, राइट। हम खुद ही अगर थोड़ा महंगा मिलता ऑर्गेनिक हम लेते नहीं है, तो हम प्रॉब्लम भी हमें, सोल्यूशन भी हमें ढूंढना है। और जब तक सोल्यूशन नहीं आता तब तक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल है लोकल मार्केट में उससे भी काम चलता है। इनफैक्ट मैं खुद भी लोकल मार्केट से लेता हूँ, और ये जानते हुए भी कि इसमें पेस्टिसाइड है, कुछ कर नहीं सकते, करने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ कि कितने दिन तक फॉलो करने से कितना असर आएगा, वो ये दिमाग में रख के बता रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा होगा। अगर तो ऑर्गेनिक मिल रहा होगा तो और जल्दी असर करेगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर सुनीता गांधी। हाँ, नेक्स्ट इज स्नेहल। हेलो सर। सर मेरा नाम स्नेहल है सर। मुझे थायराइड भी और पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी आते हैं, तो एनी सॉल्यूशन फॉर थायराइड पीसीओडी? देखिए स्नेहल, आप शुरू में मैंने थायराइड के बारे में बात की थी, तो वो आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। एंड अब पीसीओडी के बताता हूँ। पीसीओडी हो या ब्लड से जुड़ा हुआ कोई बीमारी हो जिसमें डायरेक्टली ब्लड इन्वॉल्व है, उन सबका एक सोल्यूशन ही है डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन एंड रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच, रेड मतलब बीटरूट या टमाटर, या इन तीनों को मिला के जूस। अगर एक बड़ा ग्लास पी पाएंगे 300 ml का, और ऐसा लगातार 1 महीने तक करेंगे, पीसीओडी विल वैनिश 1 महीने में, राइट। और उसके बाद 1 महीने बाद वो ग्रीन एंड रेड जूस चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ उसको जिंदगी का पार्ट ही बना लीजिए। दैट इज वेरी पावरफुल जूस, ग्रीन एंड अमंग ऑल द जूसेस। एक तो व्हीट ग्रास का जूस हो गया जो कभी कभी मिलेगा, वो तो 1 शॉट लेना है 50 ml का। सेकेंड कोई बेस्ट जूस अगर है तो वो वेजिटेबल में से ग्रीन एंड रेड कलर वेजिटेबल, दैट इज स्पिनच एंड बीटरूट एंड टमाटर, तो इसको जोड़ लीजिए। और थायराइड के लिए आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट डॉक्टर सुनीता गांधी। I ask a question. Okay, then we have June and then Preeti Dua. जून ले ले, फिर उसके बाद प्रीति दुआ। अच्छा, I have a question. जून हुई जून। नहीं तो प्रीति दुआ ले ले नेक्स्ट, क्योंकि अगर जून नहीं है। हेलो हेलो। यस प्रीति, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, ये डीआईपी डाइट तो ले रहे, इसमें क्या है कि नारियल पानी और बीट से थोड़ा ऐसे जैसे गैस बन रही हो वैसा फील होता है, बंद करने पे ठीक भी लगता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अगर एक आध कोई ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट या कोई ऐसा नहीं है, चाहे कोई
भगवान ने इतने सारे तरह के वैरायटी दिया है कि अगर एक आध कुछ ऐसा होता है जिसमें सपोर्टिव नहीं लग रहा है, उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, या वो मिल नहीं रहा, तो उसको छोड़ा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन आते हैं जब हम दो खाने के बीच में गैप ज्यादा होता है। आई ऑलवेज से यू ईट मोर फ्रीक्वेंटली, हर 1 घंटे में आप कुछ ना कुछ खा लो छोटा मोटा, राइट? जरूरी नहीं कि बड़ा मील 1 घंटे में। तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो इतने सारे नट्स हमेशा कैरी करो एंड यू कीप ऑन मंचिंग, तो आपके पेट में एसिड बनेगा ही नहीं, राइट? इन दोनों में से व्हाटएवर इज वर्केबल यू कैन यूज। So next is Ujjal. Gunjan. And I think Gunjan is trying to say something as well, but then Ujjal lene. Ma'am, please, ma'am, one time permission. Yeah, hello. One more time तो possible नहीं होगा, एक ही बार में please. One more time आप बोल चुके हैं पहले क्या, सुभाजीत? No ma'am, no ma'am. अच्छा, उज्जवल ले ले प्लीज, आप वेट करिए। फिर उसके बाद उज्जवल के बाद है जून का 2 है, और उसके बाद पूरन जी हैं, उसके बाद अभिजीत से हैं, उसके बाद फिर मैं गुंजन ले लूंगी, उसके बाद फिर आपको ले लूंगी सुभाजीत, ठीक है? उसके फिर मैं So ma'am, can I go ahead? हाँ उज्जवल बोलिए, संक्षेप में बोलिए सब लोग प्लीज। ठीक है मैम। एक्चुअली मेरे फादर वो डीआईपी डाइट ले रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, और शुगर 9 साल से है, तो फादर खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस प्लीज। अच्छा, नमस्कार सर, हम आपको पश्चिम बंगाल मोकर रोहिदास बोल रहा है। आपको 3 रोज का डायबिटीज का हम ट्रेनिंग लिए थे 2018-9 में, तो आपका बात पर आधार पर अभी ऑलरेडी हमारा टोटली आपको मेडिसिन बंद है, और अभी मेडिसिन हमारा बीच बीच में जो है वो डाइट का अपना गड़बड़ी के चलते 200 से ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम अभी नहीं है। अभी बीच बीच में कल हम टेस्ट किया तो देखा खाने का बाद जो दोपहर में ड्यूटी करने के आने के बाद अगर देखा जो 429 हो गया, तो हम बोला गड़बड़ कुछ हुआ होगा। फिर देखा रात में टेस्ट किया तो 200 से नीचे आ गया। तो सर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, खान पीने में थोड़ा एडवाइस कीजिए। हाँ, इसमें उज्जवल जी, ये मैं आपको बाकी लोगों के लिए दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अचानक 400 हो गया, फिर 200 आ गया। ब्लड शुगर जब बढ़ता है वो डाइट के अलावा हमारे जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। और कभी कभी हम सब में इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरा भी ब्लड शुगर कभी कभी, मैंने तो बहुत कम चेक किया है, लेकिन जब हो सकता है कि वो 300 से ऊपर चला जाए। 300 से ऊपर जाने जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में होंगे तो चला जाएगा, और स्ट्रेस जब कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो बट दैट डज नॉट मीन यू आर ए डायबिटीज पेशेंट, राइट? जिस तरह से आप तेजी से भागेंगे तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो 190 बाई 100 आ जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। एक्शन रिएक्शन, मैं तेजी से भागा था तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब मैं रुक गया हूँ तो थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर दोबारा नीचे आ जाना चाहिए। अगर अपने आप नीचे आ गया दोबारा, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। सिमिलरली ब्लड शुगर भी, जब हम मेंटली भागते हैं यानी कि स्ट्रेस में होते हैं, जो कि हम सब होते हैं, राइट, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा चाहे हम कुछ ना खाएं। लेकिन जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो दोबारा कम हो जाता है। तो ये बात समझ लेंगे तो आप कभी भी अलार्म नहीं होंगे व्हेन यू सी द हाई ब्लड शुगर, पहली बात। दूसरी बात, हम सबकी आदत पड़ गई है कि हम ऑफन ब्लड शुगर चेक करते हैं। जो लोग ज्यादा चेक करते हैं वही लोग पता लगा पाते हैं कि कभी कभी सबकी ब्लड शुगर बढ़ती है। तो लेकिन ये चेक करने की जो मोर फ्रीक्वेंट आदत है, इसी आदत की वजह से हम कई बार दवाओं के ट्रैप में आ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 300 चला गया, 400 चला गया, लेकिन 300-400 जाना वैसा ही है जैसा बहुत तेजी से भागने से 200/100 ब्लड प्रेशर आ जाना, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितना चला गया, इंपॉर्टेंट ये है क्या वो क्विकली नीचे आया, क्या वो बिना मेडिसिन के नीचे आया। अगर बिना मेडिसिन के क्विकली 1-2 घंटे में, 3-4 घंटे में नीचे आ गया, दैट इज अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ योर ब्लड शुगर। तो मिस्टर रोहिदास, वो बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बिना मेडिसिन के वो 200 में आ गया, इसका मतलब ठीक है। कई बार स्ट्रेस होता है, हमें पता भी नहीं चलता, राइट? स्ट्रेस है, एंगर है। आप एक काम कीजिए सभी लोग, इसके बाद एक ब्लड शुगर चेक कीजिए, फिर एक बहुत डरावनी मूवी देखिए, डरावनी मूवी, और डरावनी मूवी 3 घंटा देखने के बाद फिर ब्लड शुगर चेक कीजिए, बीच में कुछ खाइए मत, आप देखिए ब्लड शुगर कितना बढ़ गया, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाएगा कि थॉट का ब्लड शुगर से एक डायरेक्ट कनेक्शन है, right? And that does not translate into calling ourselves as a diabetes patient. Yes, next. Okay, next is Puran. Puran ji is by phone. Ask a question now.
Puran ji is next, and then after that Abhijit, after that Gunjan yourself, and then we'll end with Subhajit. Okay, so next is Puran. Puran ji, आप फोन पे हैं शायद? हेलो, वीडियो पे नहीं हैं. हेलो, बोलिए. हेलो, हाँ सर. यस, हेलो, पूरन कैरी ऑन. हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि डीआईपी डाइट और एज के बीच कोई ऐसा रिलेशन है क्या? जैसे मेरे फादर 70 इयर्स के हैं अभी, तो डीआईपी डाइट उनके लिए भी ऐसे ही वर्क करेगा? या पूरन, मैंने देखा है कि 4 इयर्स टू 84 इयर्स, राइट, बड़े उम्र में ये होता है कि वो चबा नहीं पाते हैं, तो तब स्टीम कर लीजिए, थोड़ा बॉईल कर लीजिए, स्मूदी बना लीजिए, सूप बना लीजिए, दैट इज डिफरेंट. बट अगर चबा पा रहे हैं तो डीआईपी डाइट वैसे ही लें. एंड जो आप पूछ रहे हैं कि वो सेम टाइप से वर्क करता है, सेम ही उसका रिजल्ट आता है. मैंने रिजल्ट डिफरेंस नहीं देखा इन द ब्रैकेट ऑफ 4 इयर्स टू 84 90 इयर्स तक. जितने भी मेरे ख्याल से 80 इयर्स का मैक्सिमम मेरे पेशेंट हैं. जी सर. रिजल्ट. जी सर. ओके सर. ओके, अभिजीत नेक्स्ट. हाँ जी, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ. आवाज आ रही है मेरी सर जी? अभिजीत, आई एम एबल टू लिसन. या मुझे जो है ना कुछ सालों से जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है. जैसे पेट साफ नहीं हुआ, ये फीलिंग काफी ज्यादा रहती है, और थोड़ा बहुत खाना खा लूंगा तो ये फीलिंग रहती है कि काफी ज्यादा मैंने खाना खा लिया है. अभी 27 मई से मैं डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, पर इसमें थोड़ा बदलाव आया. पर अभी भी कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है जब पेट साफ नहीं हुआ है, ये फीलिंग काफी ज्यादा रहती है. इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ मैं बताता हूँ. ये फॉलो करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो सकता है. अभिजीत, इसमें एक बात समझना होगा, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फॉर यू. जब पेट साफ नहीं हो रहा या डिस्कम्फर्ट है और लगातार क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक है, इसका मतलब कि कोलोन में या स्टमक में, इंटेस्टाइन में देयर इज अ माइक्रो इन्फ्लेमेशन. वो घाव जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक वो चलता ही रहेगा, लिंगर ऑन करेगा. कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग. एक बार उस घाव को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा. अच्छा, तो एक बार कैसे खत्म करें उस घाव को? एक बार स्टमक के मैक्सिमम घाव ठीक होने में, ज्यादातर घाव को, अगर वो बहुत बड़ा अल्सर है तो अलग बात है, कैंसर ग्रोथ है अलग बात है, बट मैक्सिमम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, द काइंड विच जो आप बोल रहे हैं, उसमें लगता है 3 डेज, 3 दिन लगता है स्टमक के या मुंह के अंदर की इन्फ्लेमेशन. लेकिन उस 3 दिन में आपको स्टमक को लॉकडाउन करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा. वो कैसे? यू कैन बी ओनली ऑन कोकोनट वाटर एंड इसके लिए मैं जानता हूँ इन्फ्लेमेशन चला जाएगा 72 आवर्स. दोबारा रिपीट करेंगे? एक्चुअली वो हवा की आवाज काफी आ रही थी. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 72 आवर्स के लिए यू डोंट ईट एनीथिंग, बी ओनली ऑन कोकोनट वाटर फास्टिंग. कोकोनट वाटर फास्टिंग, पानी और नारियल पानी पी सकते हैं कितना जितना आपका मन करे, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 10 ग्लास फॉर 3 डेज. 3 days you are not eating anything but you are drinking coconut water. coconut water पीने से जो बॉडी की नेसेसरी मिनरल्स है, नेसेसरी एनर्जी है, नेसेसरी शुगर है, वो सब मिलता रहेगा. The stomach will get a time to cure the inflammation, and 4th day onward you start the DIP diet. Most likely the problem will get solved. ओके, ये कितना पानी ले सकते हैं अपना ये कोकोनट वाटर? टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने में आप कंफर्टेबल हैं उतना लेना है लीजिए. पानी नहीं लेने नहीं लीजिए, प्यास के अकॉर्डिंग लीजिए, पूरा दिन लेते रहिए. दैट इज एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल. और रेगुलर पानी अपना रोज का घर, वो पानी नॉर्मल वाटर पानी लीजिए, बेस्ट है कोकोनट वाटर लीजिए. दैट इज अ मोर प्योरर फॉर्म. ओके, डॉक्टर सुंदर जी नेक्स्ट. Gunjan ji. Yes. Sir, I have a question. Is it possible for a diabetes type 1 patient to produce insulin on its own? Like starting में जब diabetes हुआ था detect, 10-year-old को हुआ था, तो it was 0.07. The body was making insulin of count 0.07. And now when I started the DIP diet for the child, so the insulin produced is 0.014. So is it possible to increase with the diet?
ये टाइप 1 का हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया है गुंजन, एंड टाइप 1 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें मैंने देखा है जो व्हाट आई लेट मी आंसर द क्वेश्चन। टाइप 1 के पेशेंट्स इफ दे आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये हो सकता है व्हेन दे आर ऑन स्ट्रिक्ट डीआईपी डाइट। स्ट्रिक्ट डीआईपी डाइट मींस इवन प्लेट 2 भी एक बार ही लेना है, वो भी डिनर में, लंच में नहीं लेना। लंच में लिया तो डिनर में नहीं लेगा। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम आउटसाइड वो दैट रिड्यूस बाय 2/3 अप्रोक्सीमेटली। अगर 100 यूनिट लेता है बच्चा तो वो सिर्फ 30 यूनिट से उसका काम चल सकता है या 25 यूनिट से काम चल सकता है। एक ही बार लेने की जरूरत पड़ेगी, राइट? वो लॉन्ग एक्टिंग एक बार। लेकिन अगर ये है कि हो जाए तो मैंने बहुत 1 या 2 केस देखा है जो 1 साल के बाद आए और फिर भी उनका इंसुलिन सारा छूट गया। दैट इज पॉसिबल, एंड दैट उसके लिए मैंने इस वीडियो के शुरू में एक स्पेशल मैंने डाइट बताया था टाइप 1 के लिए, जिसमें पत्तों का जिक्र किया था और फ्रूट से पहले वेजिटेबल खाने का जिक्र किया था। यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग वंस इट इज लोडेड इन फेसबुक, और उसमें आपको जवाब कुछ मिल जाएगा। यू विल गेट सम मोर डिटेल आंसर। यस मतलब उसको ना अभी 1 मंथ ही हुआ है स्टार्ट होके डायबिटीज, तो इतना जल्दी रिकवरमेंट होता है क्या डीआईपी डाइट से? 1 मंथ अगर हुआ है तो इट टेक्स अबाउट 1 डे टू रिकवर। 1 डे, 1 महीना हुआ तो ये दिस इज द राइट टाइम। आप बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए मुझ तक, तो देयर इज अ ग्रेट चांसेस दैट ही विल नेवर नीड इंसुलिन। आप अभी स्ट्रिक्टली अभी से सारा काम छोड़ के बच्चे का डीआईपी डाइट पे शुरू कर दीजिए। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को दोबारा देखिए। इस वीडियो में बीच में कुछ ना कुछ बोला है, प्रोटीन के बारे में बोला है मैंने और पत्तों के बारे में बोला है। इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम, एंड ब्लड शुगर कब चेक करना है वो सारा बोला है। उसको सब कुछ इम्प्लीमेंट करके फिर जो रिपोर्ट मैंने मांगी है किसी और पार्टिसिपेंट से, वो रिपोर्ट आप भी मुझे दीजिए अगले 3 दिन का, तो उसको देख के आई विल रिव्यू। याद रखिए ये जो गोल्डन चांस है, अभी 1 महीना हुआ है, ये एक मौका है टू गेट बैक टू रिवर्स द डायबिटीज। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे और उसके जो चांसेस हैं रिकवरी के वो कम होते जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट चांस टू रिकवर, सो यू वर्क राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। ओके, सुभाजीत जी आप हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड उसके बाद मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहूंगी हाउ वी कैन कंटिन्यू टू बी इन टच विद विश्वजीत जी। तो पहले सुभाजीत जी आप बोलें अपने वर्ड्स, आखिरी वर्ड्स हैं। उसके बाद बहुत सारे नमस्ते, हो नहीं पाएंगे कवर आज। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे पापा 56 इयर्स एज है, उनका 2-3 साल से बैक पेन है। एलोपैथिक दवाई यूज कर चुके हैं लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला है। एमआरआई भी किए थे, उसमें L4, L5 और S1 में गैप शो कर रहा है। ओके तो सर कौन सा डीआईपी डाइट या स्पेसिफिक डाइट कोई ये चालू करे सर? देखिए 2 चीज करें। एक तो डीआईपी डाइट आपको पता है सुभाजीत, उसको कर दो स्टार्ट। दूसरा चीज, रात को सोने से पहले जब आपके पापा सोएंगे तो सोने से पहले एलोवेरा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपने सुना होगा, पत्तों से एलोवेरा निकालना है 2 चम्मच 3 चम्मच, उसको क्रीम की तरह लगा देना है राइट बैक में, और उसके ऊपर हॉट वाटर थेरेपी, हॉट कॉम्प्रेस बोलते हैं इसको राइट। उसमें क्या होता है कि आपको केमिस्ट स्टोर में मिल जाएगा, हॉट वाटर बॉटल होता है जिसमें पानी होता है, वो गर्म हो जाता है और वो सेक देना बोलते हैं इसको। सेक देंगे 15 मिनट के लिए, जो सेक देंगे उससे टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, पेन कम होगा या नहीं होगा, और जो डीआईपी डाइट है उसमें परमानेंटली अंदर से क्योर होना शुरू हो जाएगा। टोटल अवधि लगता है अबाउट 4 months to 6 months टू क्योर कम्प्लीटली, लेकिन उस 4 महीने 6 महीने आराम से निकल जाए उसके लिए ये जो 15 मिनट का रोज का जो मैंने बताया, उससे टेम्पररी रिलीफ और डीआईपी डाइट परमानेंट रिलीफ, ये दोनों को कंबाइन करना है। दिस इज द ओनली आंसर। अब रहा सवाल दवाइयों का, अगर कोई ले रहे हैं या L4 L5 वो सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, वो सब बस वो लंबा चलता ही रहेगा, उसको एकदम जीरो कर देना है। पूरा फोकस सिर्फ डाइट एंड इस जो भी मैंने बताया इस पे रखना है, एंड वेट फॉर अबाउट 6 months टाइम, 4 to 6 months टाइम टू सी सर एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक कि एक्सरसाइज करते हुए दर्द ना हो रहा हो। जैसे ही दर्द हो रहा है मतलब वो अपना लिमिट क्रॉस करने जा रहे हैं तो बैठ जाएंगे। वो वाला एक्सरसाइज करें जितने में कंफर्ट रहे। दर्द का थोड़ा भी इंडिकेशन हो गया तो उसको वहीं डिस्कंटिन्यू करना, वही रोकना है धीरे धीरे। अच्छा, सर एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट सब छोड़ देना? ऑफ कोर्स छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है, ये पहला कदम है। अच्छा या डॉक्टर सुनीता, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सुनीता, I have one message.
या डॉक्टर संदीप प्लीज। जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ध्यान से बता दूं। डॉक्टर संदीप would like to say something. डॉक्टर संदीप। हाँ, it is one of the important information. मेडिकल प्रैक्टिशनर। विश्वरूप तो शायद मुंह के अंदर ऑपरेशन नहीं करते होंगे, मैं मुंह के अंदर ऑपरेशन करता हूँ। ये ग्लव्स पहन के मैं पूरी जिंदगी ऑपरेशन किया हूँ, कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब से ये कोरोना के चक्कर में ओवर में पहनने लग गया, मैं खुद इन्फेक्ट हो गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको इसको पहनने की जरूरत नहीं जबरदस्ती का। ठीक है। और इसकी ये अल्कोहल ये इतना ही 1 महीने से मैंने यूज नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ, नहीं मारा, जिंदा हूं मैं लाइव। तो आप इसके चक्कर में कभी मत रहिएगा। ये पेशेंट के समय में यूज करता था तब तक ठीक था, जब मैं जबरदस्ती यूज करता मैं खुद इन्फेक्ट हो गया। मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, सबको खांसी आने लगी थी, मुझे डर लगने लगा था। लेकिन थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी फॉर क्लियरिंग द कंफ्यूजन। फ्रॉम लास्ट 2 months आई एम डूइंग द पेशेंट, आई एम इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड नथिंग इज, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं जिंदा हूँ। मेरे आसपास 18 केस है, कुछ नहीं हुआ मुझे। So don't get afraid of it. Thank you. Great, wonderful input. ओके, अब वक्त आ गया है विश्वरूप रॉय चौधरी साहब को धन्यवाद देने का। डॉक्टर विश्वरूप जी, आपने फिर एक बार से बहुत लोगों की मदद करी है अपनी DIP डाइट, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो आपने नुस्खे लिए हैं, जैसे कि ग्रीन पत्तियों का सेवन करना, और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और जैसे क्रम में करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे हम फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। तो जो हम समझे, हमने 3 दिन हमने खुद भी ट्राई किया, आज मेरा 5वां दिन था बल्कि ट्राई किया, और मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है। तो मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो आई एम वन ऑफ योर पेशेंट्स नाउ एंड आई विल बी प्रैक्टिस दिस फॉर श्योर। आई वांट टू थैंक यू होल हार्टेडली, पूरे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबकी मदद में लगे रहते हैं दिन रात, और लोगों को पहुंचने के लिए जो आपने प्रयत्न किए हैं, और हम इस गेटी फोरम जो ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फोरम है, उसके तत्वाधान में आपको बार बार लाने की कोशिश करेंगे, और जहां संभव होगा लाएंगे। तो आप लोग जो लोग बाहर से देख रहे हैं, लाइव सेशन पे देख रहे हैं, ये फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं भविष्य में भी। तो उसमें है गेटी लर्न पे जाएंगे जब आप फेसबुक में, तो वहां पर आप रिविजिट कर सकते हैं कई बार देखने के लिए, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस साइट पर। तो ये है कि विश्वरूप जी की डाइट बहुत ही क्लियर है, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जो उनकी वेरियस तरीके से आपके पास मिल जाएंगे, और गेटी साइट पे भी आप मिल जाएंगे। तो आप देखते रहिए और अपने को इन चीज़ों पे बार बार रिमाइंडर करके करते रहिए। मैं भी रिमाइंडर करती रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत बड़े फायदे हैं, नेचुरल चीजें हैं, एक प्राकृतिक क्रम है जो और प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली फायदा दे रही देंगी। और बहुत सारे लोग जो आज इस जूम के मीटिंग रूम में अंदर आए हैं, तो कई लोगों ने बयान दिया है कि इन 4 दिनों में उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस डाइट को लेके, और हर तरह की जो उनके ट्रबल्स हैं वो धीरे धीरे और भी कम हुए हैं, जिन्होंने लिया है और कुछ महीनों के लिए लिया है। कई बहुत समय से प्रॉब्लम्स थी, 10-10 साल 15-15 साल प्रॉब्लम्स रही हैं। 3-4 दिनों में उनको लगा कि कुछ राहत मिली है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि भाई मेडिसिन एकदम से मत छोड़िए, तो धीरे धीरे छोड़िए, और बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो हम उत्साहित तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो मेजर्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग करना है, और वेट के अनुसार, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले फल खाना, फिर उसके बाद सब्जियां खाना, खाने के साथ 2 प्लेट होनी चाहिए, एक सब्जी पहले खाएंगे, फिर आप जो है खाना दूसरा खाएंगे। कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट्स, वाइट चीज़ें इन जनरल अवॉइड करेंगे, और बिस्किट्स और पैक्ड फूड्स अवॉइड करेंगे, और इसके अलावा सनशाइन ज़रूर लेंगे। तो ये रिमाइंडर अपने को डेली देना है कि 20 से 40 मिनट सनशाइन लेने की कोशिश करें हम लोग। डॉक्टर साहब, डिड आई गेट इट राइट? हमने क्या सही समझा है जो आपने कहा है? फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। Okay, wonderful. So I want to thank you wholeheartedly on behalf of Global Education and Training Institute, Adaptive Education Movement। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को भी, जैसे यहाँ पे देखा गया कि 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया, तो बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, डिजीजेस हो रही हैं।
बहुत बड़ी कंसर्न है फॉर ऑल एजुकेटर्स. सो एज एन एजुकेटर आई रियली वांट टू थैंक यू कि ये चीजें हमने बहुत की हैं, हम उनको बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और सारे एजुकेटर्स का आपका मैसेज लेके जाएंगे. सो धन्यवाद फॉर कमिंग हियर.